clear to all. All right, great. Just a second. Let me just improve the sound quality so you can hear my voice more louder and clear. Just a second. I'm doing that. All right, here we go. Okay, perfect. It's perfect. All right, great. So, are you guys able to see my screen? If my screen is visible, just write down visible into the chat. Just write down visible into the chat so I can see that my screen is visible. All right, great. So, with that said, welcome to the day one of 5 days data science workshop. It is going to be an amazing workshop. इस वर्कशॉप में जो हम वैल्यू लेने वाले हैं वो वैल्यू आपका उतना ही वैल्यू होगा जितना आप एक कॉलेज में 1 ईयर में लेते हैं. Alright, so this is going to be an amazing workshop in which we are like conducting a lot of things. हम यहाँ पर 5 days के लिए अलग अलग चीजें सीखेंगे, अलग अलग टूल्स को सीखेंगे. And today we are going to be creating a real world data product. Using the client's data, we are going to create the real world data product. So are you guys excited to learn about the data domain and create a real world data product? Just drop a boom into the chat. Let me see the excitement because your excitement builds my excitement. All right. So drop a boom into the chat. Let me see the boom into the chat. All right. Great. That's great. So how we are going to be executing the whole workshop? I have divided the workshop in 3 parts. First of all, we are going to be understanding about the industry overview. First of all, we are going to be understanding about the industry overview. What is the demand into the industry? How the data is being leveraged in different kind of industries like finance, like marketing, like technology, how the data thing is happening and how the companies are using the data because of which they are improving their businesses. All right. So in the phase one, what we are understanding about the demand trend, that why currently into the current scenario, as we can see that there is a huge demand into the data domain. Why is that? We are going to be understanding that first. After that, we are going to be understanding the industry penetration, that how the data is being leveraged in different kind of industries. And in phase two, we are going to be building a real world data product. How we are going to do that? We are going to be taking a scenario, a real world scenario in which a company, a client is coming to us and they want a real world data product. They want to build their product. They want us to analyze their data. This is what we are going to be understanding. And in the phase three, in the final phase, what we are going to do, we are going to be understanding that how you can make your career into the data domain. So are you guys excited for that? Let me see the boom into the chat because I have told you the whole framework of this particular workshop, the whole framework on next 2 hours, what we are going to do, how we are going to do it, and what you can expect from this particular workshop. All right. So this is what we are going to do. Just drop a boom into the chat if you're really excited. All right. Not just this, not just this. There are 2 mega bonuses who are waiting for you. There are two bonuses. All right. There are 2 bonuses who are waiting for you. First is Excel Masterclass, and second is the LinkedIn Masterclass. Both are amazing tools. If we'll talk about the corporate world, these 2 tools are very, very important to manage your work, to manage your professional work, to manage your like work from the office. आप बहुत ज़्यादा extensively Excel use करने वाले हैं, and to connect with the recruiters, to connect with your colleagues, to connect with the same network, LinkedIn बहुत ज़्यादा आपका helpful हो सकता है. So you guys are going to receive these particular 2 mega bonuses, but there's only one condition, that you have to stay till the end. All right. To get these particular bonuses, to get the promo code by which you can get it for free, 100% discount. This is a Christmas Eve. This is a Christmas bonus for you guys. So who are excited and who is going to stay till the end to get these bonuses? Let me see into the chat. Who is going to stay till the end? Let me see. Just write down stay till the end. All right. That's great. That's great. That's great, guys. And one more thing. This is going to be a communication. I'm going to be saying a lot of things, but I want you guys to be really, really active onto the chat so we can like communicate with each other. You can tell me that what you have understood by the concepts that I'm telling you, so by which I can like elaborate the terms into a more better way. All right. So this is going to be a communication. So make sure that you are really, really active onto the chat. All right. Okay, I have restricted you guys to see the chat because I don't want you guys to be get distracted.
ओके मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो इसकी वजह से। सारे जो मैसेजेस हैं आई एम गोइंग टू से आई एम गोइंग टू बी एबल लाइक टू सी दैट, you guys are not going to be able to see that. All right, okay, starting now, the very first phase in which we are going to be understanding about the demand trend, and along with that we are also going to be understanding the industry penetration. This is the phase one. Starting the phase one, guys, what is the demand trend into the data domain, how the companies are hiring into the data domain, and why the companies is hiring into the current scenario, why this is the right time to enter into this particular domain. This is what we are going to discuss in the phase one. All right. So we know about Glassdoor, right? We know about Glassdoor. If we are searching about a different company, if we are searching about a specific job or a specific domain, Glassdoor is like the industry leader. If you are going to search over Google, the very first results are from Glassdoor only. And Glassdoor have ranked the data science domain at the second place in 2021. In 2021, when the whole world was in lockdown, when there was like the complete lockdown was happening and every particular domain was going into the downtrend, at that particular time also Glassdoor have ranked the data science domain at the second place, because in the data science domain there was a rapid hiring at that particular time also. तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे टाइम में जब पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन के अंदर था, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हर पर्टिकुलर डोमेन जो है वो डाउन ट्रेंड पे जा रहा था, उस वक्त भी अगर आप देखें वहां पर भी ग्लास डोर के अकॉर्डिंग data science was at the second place into the hiring in 2021, I'm saying. All right, according to the US Bureau of Labor Stats, data science will grow about 28% by 2026. This is the domain which is going to be growing in the coming years. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है कि डेटा साइंस अब बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है? व्हाई इज दैट? उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. Why India is the best market into the current scenario if we'll talk about the data domain. Why is that? We are going to be discussing that. All right. So focus on this, guys. मैंने यहाँ पर 3 पिन पॉइंट्स किए हैं, कुछ जो सिनेरियोज हुए, जो कुछ इंसिडेंट्स हुए, वो मैंने यहाँ पर नोटिस किए हैं. इफ यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग्स, जस्ट राइट डाउन एग्री इनटू द चैट. ऑलराइट, आई एम गोइंग टू बी लाइक पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वन बाय वन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. अगर आप इन चीजों से एग्री करें तभी आप लिखिएगा. अभी रुकिए, पहले मुझे इसके बारे में बताने दीजिए. ऑलराइट, व्हाई देयर इज डिमांड इनटू द डेटा डोमेन. द वेरी फर्स्ट रिवॉल्यूशन वाज द जियो रिवॉल्यूशन. जियो रिवॉल्यूशन के बाद, जियो के बाद क्या हुआ कि हर पर्टिकुलर पर्सन के बाद ऐसे लोगों के पास, क्योंकि जियो के आने के बाद क्या हो गया, जो इंटरनेट एक्सेस था दैट वाज प्रोवाइडेड एट वेरी चीप रेट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बिकॉज वी नो 135 करोड़ पीपल इन इंडिया, और उनके पास क्या हुआ, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस आया. और जब उनके पास इंटरनेट का एक्सेस आया, जब वो ऑनलाइन गए, वो ऐसी डेटा से इंटरेक्ट कर रहे थे जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, या फिर वो खुद डेटा क्रिएट कर रहे थे. जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, आप पोस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, आप दूसरों की रील्स वॉच करते हैं, आप दूसरों के फोटोज देखते हैं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द डेटा विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड, और यू आर क्रिएटिंग द डेटा. या फिर आप पोस्ट कर रहे हैं, या तो आप दूसरों के पोस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप खुद पोस्ट कर रहे हैं. All right. So after the geo revolution, the amount of data was rapidly increased. Do you agree with this particular statement or not? Just write down agree into the chat if you are agree with this particular statement. This is the very first revolution that happened into India. All right, into the data domain. Now let's talk about the second revolution. That was the COVID-19. Unfortunate था, लेकिन हुआ. ओके, अनफॉर्चुनेट था, काफी अनफॉर्चुनेट था कोविड-19 का आना. और उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ऑनलाइन जाने से, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से, उन्हें भी चाहते हुए और ना चाहते हुए भी ऑनलाइन जाना पड़ा. जिसकी वजह से जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो एक बड़ा एरिया रह रहा था टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से, उन्हें भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा. और जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जैसे हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जो कोविड से पहले से वर्क फ्रॉम होम ऑफर नहीं करते थे, लेकिन अब वो वर्क फ्रॉम होम ऑफर करते हैं. यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को अडेप्ट किया गया है, ई लर्निंग को जिस तरीके से अडेप्ट किया गया है, आज हम यहाँ पर ऑनलाइन एक वेबिनार में कनेक्टेड है और मैं यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज आफ्टर कोविड-19, राइट? ये कोविड-19 के बाद ही हुआ है, राइट? यस और नो इनटू द चैट. क्योंकि कोविड-19 से पहले दिस वाजंट रियली नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं था.
लोग ऑफलाइन वेबिनार्स में जा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन वेबिनार्स में कनेक्ट होना दैट वाजंट नॉर्मल, ठीक है। तो कोविड-19 वाज द सेकंड रिवॉल्यूशन दैट हैपेंड इनटू द इंडिया, जिसकी वजह से और ज्यादा लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेटा और ज्यादा इंक्रीज हुआ. डू यू एग्री विद द सेकंड स्टेटमेंट और नॉट? जस्ट राइट डाउन एग्री इनटू द चैट इफ यू आर एग्री विद द सेकंड स्टेटमेंट. All right, great. Now let's move to the third statement. The third statement is about 5G. अभी 5G कुछ दिनों पहले 5G लॉन्च हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने 5G को लॉन्च किया है, और उसके बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है जिससे आपका जो इंटरनेट एक्सेस का स्पीड है वो और ज्यादा इंप्रूव हो. अब आप मुझे ये बताइए, आफ्टर 5G द अमाउंट ऑफ डेटा विल इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर 5G the amount of data will increase or decrease? Increase, right? Okay. So if the data will increase, the demand into the data domain will increase or decrease? The demand into the data domain will increase or decrease? It will definitely increase, right? So this is why the demand into the data domain is rapidly increasing. The companies are hiring the data professionals, क्योंकि डेटा जो क्रिएट हो रहा है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, they want the data specialist people, they want the data related people जो उस वर्क को कर सकें. All right, this is why we want the data specialists into the current scenario. These are the factors. All right, these are the factors because of which the demand into the data domain is rapidly increasing. All right, okay. 2.7 million jobs are listed in 2020. In just 2020 और 2021 की अगर हम बात करें, ये दो ऐसे ईयर्स थे जिसमें हर कंट्री लॉकडाउन के अंदर थी, हर पर्टिकुलर डोमेन बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा था, एंड उसके बाद भी अगर आप देखें डेटा डोमेन में डिमांड इंक्रीज ही हुई है. 2.7 मिलियन जॉब्स आर लिस्टेड इन 2020. इन जस्ट 2020 2.7 मिलियन जॉब्स वर लिस्टेड. अब एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर सिनेरियो पर इतना ज्यादा जॉब्स जो है वो इंक्रीज हुई, इतना ज्यादा जॉब्स जो है वो लिस्ट की गई, तो आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले ईयर्स में किस तरीके से इस पर्टिकुलर डोमेन में डिमांड इंक्रीज होने वाली है. 11.5 million new jobs are coming in next 5 years. In next 5 years, 11.5 million new jobs are coming. That means this is the right time to enter into this particular domain. All right. So guys, I know you must be having a lot of queries. वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन तभी मिलेंगी जब आपको, अगर आप एंड तक यहाँ पर स्टे करते हैं. ऑलराइट, आई एम आंसरिंग द जनरल क्वेरीज, जिससे आप ये क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, आई एम टीचिंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आप कुछ और पूछते हैं, सो इट इज काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, डू नॉट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम like continuously looking onto the chat. मैं आपके responses देख रहा हूँ. If you are going to talk about a random thing, तो यहाँ पर आप मतलब this is not the right thing. I'm going to be giving you the time, then you can ask the queries. आपके पास बहुत सारी queries हैं. I have already structured everything. आपकी queries का already आपको आंसर मिल जाएगा. Don't worry about that. Okay? Good to go? Understood? Just write down understood into the chat. You can ask the question. I'm not saying no to the questions, but ask at the right time, right? अगर मैं कुछ और बात कर रहा हूं, आप कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये फिर हमारा टाइम वेस्ट करने वाला है. Good to go? All right, great. Thank you for being an amazing audience. Thank you so much. All right, moving on, guys. Moving on. So let's talk about the industry stats. Data analytics industry will be worth $132.9 billion by 2026. एक जॉब में हम क्या चाहते हैं, करियर में हम क्या चाहते हैं, करियर ग्रोथ हो, ठीक है, हमारा जो पोजीशन है कंपनी में वो ग्रो हो, और साथ में मोनेटरी ग्रोथ भी हमारी हो. अगर हम मोनेटरी ग्रोथ चाहते हैं तो उस सेक्टर में, उस डोमेन में मोनेटरी ग्रोथ है या नहीं, ये भी हमें बहुत ज्यादा मैटर करता है. ये भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर देयर एंड व्हाट इज द पे स्केल ऑफ दोस जॉब्स. We have to like understand these particular things. तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, if the data analytics industry will be worth $133 billion by 2026, what kind of salary you can expect? All right, you can get an idea about that. Okay, as per market research future, data analytics will achieve a compound annual growth rate. As I said कि year on year यहाँ पर growth होने वाली है. So
As per the market research future, data analytics will achieve a compound annual growth rate of 28.9%. This is what you can expect कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर रैपिड ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है आपका. की प्लेयर्स की अगर बात करें, व्हाट आर द कंपनीज हु आर लेवरेजिंग द डेटा, व्हाट आर द कंपनीज हु आर यूजिंग द डेटा, अगर उसकी हम बात करें, वी हैव द इंडस्ट्री लीडर्स who are like the top into their particular domain, like we have Google, we have Intel, Cisco, Amazon, Samsung, Tesla, Sony, Oracle. तो ये तो ऑलरेडी इनके डेटा को लेवरेज कर रहे हैं. These particular companies are already leveraging their data, but other than that also, if we'll talk about the small cap companies, if we'll talk about the mid cap companies, if we'll talk about the large cap companies, even the startups are now leveraging their data, because leveraging their data means that they are understanding about their businesses in a better way. अगर आप अपने बिजनेस के बारे में एक बेटर वे में समझ रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, that means you can pin out the things. आप उसमें से चीजें निकाल सकते हैं. Okay, this is the area where we have to like figure out the things, where we have to improve the things. Okay, मैं आपको यहाँ पर केस स्टडी के बारे में भी समझाऊंगा. Alright? Okay. I know guys, you must be having a lot of queries. Data science, data analytics में क्या difference है? I have already structured everything. Just wait for it. Just focus on the current thing. आपके पास ये भी क्वेश्चन होंगे कि आपके पास व्हाट डू यू मीन व्हेन यू आर सेइंग लेवरेजिंग द डेटा. लेवरेजिंग द डेटा मींस के डेटा को यूज करके आप अपना बेनिफिट किससे कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस. ऑलराइट, ओके. नाउ let's talk about the industry penetration. How many of you wants to understand that how the data is being leveraged or the data is being used in different industries? Just write down boom into the chat if you want to understand that how the data is being used. Just write down boom into the chat. Amazing audience today we have. Truly amazing, energetic, and yes, I understand that today is the holiday and you guys want to go outside and have fun. So you will definitely, but before that, I want to boost your confidence. I want to like tell you that what is happening into the domain. All right, what is happening into the whole world. So you'll get definitely like boost your confidence, and you'll have something to talk about when you are going to meet your friends today's evening. Okay, so you can talk about these particular things. Okay, this is what is happening into the data science. All right, so you are going to be a smart person there. All right, so congratulations for that. All right, moving on. So today what we are going to do, okay, please focus on this. टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से डेटा को लेवरेज किया जा रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट. किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर डेटा को यूज किया जा रहा है. ओके, सो इफ विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर परचेज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ई कॉमर्स साइट? आप में से कितने लोगों ने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है ई कॉमर्स साइट से? जस्ट लेट मी नो इनटू द चैट. Many of you, right? Many of you, maybe everyone, 99% लोगों ने ऐसा किया होगा. Alright. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोडक्ट विजिट किया या फिर आपने कोई प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड किया या फिर विश लिस्ट में ऐड किया और उसके बाद आपको इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट हर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है? ऐसा हुआ है आपके साथ? Yes or no? Yes? So how does this work? How does this work? How this is happening? What do you think? How this is happening? So the kind of e-commerce sites you are visiting, they are storing your data. They are storing your data in the form of cookies. और उसके बाद हर पर्टिकुलर डेटा आपका स्टोर किया जा रहा है. आप किस कैटेगरी को देख रहे हैं, किस प्रोडक्ट पर आप ज्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो डेटा आपका शेयर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ. और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर साइट पर आप जाते हैं, वहां पर इस तरीके से एल्गोरिथम आपका वेट कर रहा होता है दैट एवरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे. ऑलराइट, सो इज दैट क्लियर टू ऑल और नॉट? टू मेक द बेटर डिसीजंस, this is how we are leveraging the data into the technology world. Yes or no? Yes or no, guys? As I said, this is going to be a communication. You have to answer every particular thing into the chat so I can get an idea कि आपको ये particular concept यहाँ पर समझ में आ चुका है. All right, great. Now let's talk about finance. That how we are leveraging the data into the finance domain. Let's talk about that. Okay. All right. How many of you knows about Ashneer Grover? How many of you knows about Ashneer Grover? Let me see into the chat. Shark Tank, Ashneer Grover, BharatPe, right? Not PhonePe.
किसी को भी आप किसी की भी कंपनी दे रहे हैं, नॉट फोन पे, ही इज द फाउंडर ऑफ भारत पे। ठीक है, काफी टाइम लगता है कंपनी को एक्वायर करने में, आपने तुरंत उन्हें यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, ये सब दोगलापन है। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंड इन भारत पे इज ट्रूली अमेजिंग, a very good examples of leveraging the data. Now let's understand that what really happened into BharatPe. So BharatPe onboards PwC for investigation against alleged financial irregularities and Ashneer Grover. Irregularities into the finances, ऐसा एक जो है एलिगेशन लगाया गया भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर के ऊपर। उनसे कहा गया कि आपने कुछ अननोन सोर्सेस को, नॉन लेजिट सोर्सेस को, जो कैश है, जो कंपनी का कैश है, उसे डाइवर्ट किया। दिस इज व्हाट हैपेंड, ऑलराइट, ये कुछ हुआ था। और ये किसने किया? पीडब्ल्यूसी इज अ कंपनी। पीडब्ल्यूसी ने पूरे फाइनेंसेस को वहां पर अच्छे तरीके से एनालाइज किया, ऑडिट किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट किया। जब उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट किया और वहां पर पैटर्न देखा, पैटर्न डेटा, पीडब्ल्यूसी इज नॉट अब्रिविएशन, पीडब्ल्यूसी इज अ कंपनी, यस द कंपनी इज नेम शॉर्ट फॉर्म, राइट, ओके। तो पीडब्ल्यूसी इज अ कंपनी जिन्होंने डेटा को एनालाइज किया, ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज उसमें से फाइंड की, और फाइनेंशियली इरेगुलरिटीज को फाइंड करने के बाद वहां पर एक पैटर्न फाइंड आउट किया गया। पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद समहाउ all the companies, all the non-legit companies, unknown sources companies, वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न शो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन शो कर रहे थे along with the wife of अशनीर ग्रोवर। So that is what happened into भारत पे, और इसी की वजह से भारत पे को वहां से किक आउट कर दिया गया। All right, a very good example of using the data. So this is how we can see the use of data on a very big scale. एक बड़े स्केल पे हम इस use of data देख सकते हैं। So financial fraud detect करने का हमने देख लिया, financial health reporting के बारे में हमने देख लिया। Algo trading की अगर बात करें हम, algo trading, how many of you trades into the stock market or invest into the stock market? Let me see into the chart. And how many of you knows about the stock market? Just write down a stock market into the chat so I can understand that how many of you knows about the stock market. All right, great. So many of you knows about the stock market, right? That's great. That's great. Let me tell you, बहुत ही easy है। एक कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स को जब पब्लिक किया जाता है, कंपनी को जब पब्लिक किया जाता है, normal people like me and you are able to purchase the stocks into the company, ठीक है, यही आप कर सकते हैं। और बेसिक क्या होता है वहां पर, डिमांड और सप्लाई का बेसिक वहां पर खेल है। अगर डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस विल गो अप, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस विल गो डाउन। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, यही वहां पर होता है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में इस सेइंग है, देयर इज अ सेइंग इनटू द स्टॉक मार्केट दैट मार्केट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू knows about this particular statement? How many of you agree with this particular statement that market tends to repeat itself? मार्केट खुद को हमेशा रिपीट करता है। ये कहा जाता है कि जो पैटर्न होता है मार्केट में वो खुद को रिपीट करता है, और उसी के बेसिस पे हम रेजिस्टेंस लगाते हुए, उसी के बेसिस पे हम सपोर्ट को फाइंड आउट करते हुए हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत ही आसानी तरीके से बता देता हूं। मान लीजिए एक स्टॉक है जो 850 पे गया, और बार बार वो 850 को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, 850 को टच करता है, बहुत नीचे आ जाता है, ठीक है। या फिर ये कहें कि बार बार क्या होता है, 800 तक नीचे जाता है लेकिन उससे नीचे नहीं जाता है। और ये 2-3 बार हो चुका है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे गया, 800 तक गया, फिर वो ऊपर जाने लग गया, फिर से वो नीचे गया, 800 तक गया, और फिर वो ऊपर जाने लग गया। तो 800 इज द सपोर्ट, वो एक सपोर्ट है, एक बनाया हुआ है। और ये कैसे काम करता है, बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल थिंग है कि अगर मुझे पता है, अगर मेरे माइंड में ये है कि 800 से नीचे ये नहीं जाने वाला है, तो मैं परचेज करूंगा, राइट, मैं परचेज करूंगा। इस तरीके से चीजें काम करते हैं। उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से आपको बता दिया। तो यहां पर क्या है, इसी के बेसिस पे हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली अगर हम देखें, काफी लोगों को यह पता है कि एल्गो ट्रेडिंग से क्या होता है, कि एल्गो ट्रेडिंग के अंदर हम ट्रेड्स को ऑटोमेट करते हैं, ऑटोमेशन से रोबोट्स ट्रेड करते हैं हमारे लिए, ऐसा होता है। लेकिन साथ में उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, दैट इज बैक टेस्टिंग। जैसे आप फोकस कीजिएगा,
अगर मैं कहूं कि मेरे पास 30 लाख रुपए हैं और मैं 30 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता हूं एमआरएफ के स्टॉक में, तो आप में से कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि 10 साल के बाद एमआरएफ के स्टॉक में अगर ये पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या प्रॉफिट में रहूंगा और क्या मैं लॉस में रहूंगा? लेकिन एक स्ट्रेटेजी है मेरी जिसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं नॉर्मल मार्केट के साथ नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। तो इज दैट पॉसिबल? यस, नो और मे बी। इज दैट पॉसिबल? यस, नो और मे बी। ये बताना पॉसिबल है या नहीं है? यस, नो और मे बी। यस, नो और मे बी। मे बी। चलिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है कि हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकता हूं। बैक टेस्ट करने के बाद मैं पता लगा सकता हूं कि 10 साल पहले अगर मैं इसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता तो आज के दिन क्या मैं प्रॉफिट में रहता या फिर लॉस में रहता। और उसी को फोकस में रखते हुए, क्योंकि देयर इज अ सेइंग इनटू द मार्केट दैट मार्केट्स टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, उसी सिनेरियो को हम लेते हुए history will revise itself, and that's how we can make a trading decision according to backtesting the data. Clear to all? Yes or no? थोड़ी सी कंफ्यूजन है, होनी भी चाहिए। नया कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन आपको आइडिया आ चुका है, राइट? आपको थोड़ा सा आइडिया आ चुका है, थोड़ी सा पिक्चर जो है वो क्लियर हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा स्मोक का टाइम चल रहा है, लेकिन स्मोक हमने थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है, राइट? यस और नो इनटू द चैट। यस और नो इनटू द चैट गाइस। ओके, ग्रेट। मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, लाइक वी हैव आरएसआई होता है, बॉलिंगर बैंड्स होते हैं। अब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चीजें होगी। अब चलते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि मार्केटिंग में जिस तरीके से रैपिड डिसीजंस लिए जाते हैं और ग्राउंड के ऊपर हमें वो डिसीजंस दिखते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा फील मुझे होता है। आपका पता नहीं, लेकिन मार्केटिंग में किस तरीके से हम यूज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले कंज्यूमर टारगेटिंग इज देयर। कंज्यूमर टारगेटिंग इज देयर इनटू द मार्केटिंग। अब देखिए, मेरे पास आपके आपके लिए एक सवाल है कि कंज्यूमर टारगेटिंग होता क्या है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे पास एक मतलब एक ई कॉमर्स साइट है, फ्लिपकार्ट है, और फ्लिपकार्ट आईफोन 14 के ऊपर एक सेल लॉन्च करना चाहती है। लेकिन इस बार सेल पब्लिक कंपनी के लिए नहीं होगी। इस बार सेल क्या होगी, जो ऑलरेडी यूजर्स हैं फ्लिपकार्ट के, जो ऑलरेडी यूजर्स हैं उनको मेल सेंड किया जाएगा। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट के पास जो है दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन ये है दैट दे आर गोइंग टू सेंड द मेल्स टू 1000 रैंडम यूजर्स। कोई ग्रोसरी परचेज करने के लिए आया, कोई शूज परचेज करने के लिए आया, कोई कपड़े परचेज करने के लिए आया, कुछ भी परचेज करने के लिए आया है, लेकिन उन्होंने 1000 ऐसे लोगों को हमने आईफोन 14 का जो एक्सक्लूसिव सेल है उसका मेल भेजा है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम टारगेटेड यूजर्स को भेज रहे हैं। टारगेटेड यूजर्स का मतलब क्या है? ऐसे यूजर्स जिसने कभी ना कभी आईफोन 14 को अपनी विश लिस्ट में ऐड किया हो या फिर अपने कार्ड में ऐड किया हो। तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा कन्वर्जन हमें ए ऑप्शन में मिलेगा या बी ऑप्शन में मिलेगा? ए ऑप्शन में मिलेगा या फिर बी ऑप्शन में मिलेगा? बी ऑप्शन में मिलेगा, राइट? हमें ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। कम ऑडियंस में हम देख पाएंगे कि ज्यादा लोग जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। सो आई थिंक कंज्यूमर टारगेटिंग इज क्लियर टू ऑल। If consumer targeting is clear to all, just write down CT into the chat. Consumer targeting, CT into the chat, so I can get an idea that consumer targeting is clear to all. Okay? And how the consumer targeting is happening on the basis of the data. If we don't have the data, we cannot do the consumer targeting at a better scale. Right? Okay. Moving on. कंज्यूमर टारगेटिंग के बेसिस पे हम एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। बड़ा डिसीजन क्या है? टाटा टी हैव came up with this unique product which is known as कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा को देखकर कितने लोगों का चाय पीने का मन किया? भाई मेरा तो किया है, और इसलिए मैंने ब्लैक कॉफी रखी हुई है। चाय तो नहीं मिल सकती, लेकिन ब्लैक कॉफी से काम चला लेंगे, ठीक है? कश्मीरी कावा, अमेजिंग टी। और इसके अंदर सिर्फ चाय पत्ती नहीं होती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्री जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और बड़ी कमाल की चाय होती है। if you'll ever visit Kashmir, do have a sip of Kashmiri kawa. All right, great.
अब कश्मीरी कावा के प्रीमिक्स के साथ, अब देखिए मेरा तो बड़ा मन था कि टाटा टी कश्मीरी कावा के प्रीमिक्स के साथ आए और हमें सिर्फ पानी को गर्म करना हो, उसमें उस प्रीमिक्स को मिक्स करना हो और हम लुफ्त उठा सकें। मैं गुड़गांव में बैठे हुए लुफ्त उठा सकूं, आप अलग अलग स्टेट से लोग हैं तो आप अपने घर बैठे लुफ्त उठा सकें कश्मीर का। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर कश्मीर के भी हैं, सो कुडोस टू यू गाइस फॉर क्रिएटिंग दिस अमृत, really guys. All right, so this was a very short love story of me and the Kashmiri kawa. Moving on to the topic now, guys. Okay, so what I'm saying कि कश्मीरी कावा का एक प्रीमिक्स लॉन्च किया टाटा टी ने, और टाटा टी चाहता है टू लॉन्च द प्रोडक्ट इनटू द होल इंडिया, लेकिन पूरे इंडिया में एक साथ लॉन्च करना कैन बी अ बैड आइडिया, ठीक है। और इसीलिए जो डेटा टीम ऑफ टाटा टी, उन्होंने कुछ यहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट को रन करने का रिक्वेस्ट किया, 1 लाख क्वांटिटी इन एवरी स्टेट। उन्होंने क्या किया, 1 लाख क्वांटिटी ऑफ कश्मीरी कावा प्रीमिक्स उन्होंने हर स्टेट में सर्कुलेट किया। आप में से कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है टाटा टी तो बहुत ही आसानी से वो एंड यूजर तक उसे पहुंचा सकता है, बिकॉज द सप्लाई चेन इज वेरी स्ट्रांग ऑफ टाटा। व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट? यस, ऑलराइट, ग्रेट। अब यहां पर यही हुआ, उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी सर्कुलेट की हर पर्टिकुलर स्टेट में, और 1 लाख क्वांटिटी सर्कुलेट करने के बाद 1 मंथ के बाद जो सेल्स रिपोर्ट थी, दे हैव फेच द सेल्स रिपोर्ट फ्रॉम एवरी पर्टिकुलर स्टेट। उन्होंने उसको फेच किया। फेच करने के बाद सम ऑफ द इनसाइट्स दैट वर जनरेटेड बाय द डेटा टीम, डेटा जनरेट कर लिया। डेटा जनरेट करने के बाद डेटा टीम को दिया गया, डेटा टीम ने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद ये कुछ इंसाइट्स यहां पर निकाले गए हैं। गुड रिस्पॉन्स इन द नॉर्थ स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, गुड़गांव इज नॉट अ स्टेट, गुड़गांव इज अ सिटी। ऑलराइट, तो आपका हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, वहां पर बहुत अच्छे तरीके के रिस्पॉन्स हमें मिले हैं। बिहार, ऑफ कोर्स बिहार इज देयर। मॉडरेट रिस्पॉन्स हमें मिला है मिडिल स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे जो स्टेट्स हैं उनमें हमें मिडिल रिस्पॉन्स मिला है। बैड रिस्पॉन्स इन द साउथ स्टेट, क्योंकि साउथ में जो लोग हैं वो कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द टी। ओके, मॉडरेट रिस्पॉन्स इन द मिडिल ईस्ट पार्ट, मिडिल ईस्ट पार्ट में मॉडरेट रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए, डेटा क्यूरेट करने के बाद इनसाइट्स जनरेट हमने कर लिए, लेकिन इनसाइट्स जब तक आपके एक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे, इन इनसाइट्स को क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। यस और नो इनटू द चैट। अगर हमने इनसाइट्स क्रिएट कर लिए हैं, हमने पूरा प्रोजेक्ट रन कर लिया है, लेकिन जब तक आप उनसे रिलेवेंट एक्शंस नहीं लेंगे तो वो डेटा भी किसी काम का नहीं है और वो इनसाइट भी किसी काम की नहीं है। यस, इनसाइट नहीं, इंसाइट उस डेटा का मतलब क्या था, दैट इज इनसाइट। ओके, ऑलराइट, let's just convert the insights into actions. Okay, I know the action spelling is wrong, there must be an error while typing, so just ignore that. ओके, बेटर सप्लाई चेन इन नॉर्थ स्टेट। सबसे पहले देखिए हमारे पास इनसाइट क्या था, इनसाइट था गुड रिस्पॉन्स इन द नॉर्थ स्टेट। अगर गुड रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स अच्छा है, ऑडियंस अच्छी है, तो वहां पर हम सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं। यस और नो इनटू द चैट, यस और नो इनटू द चैट। डू यू एग्री विद द फर्स्ट स्टेटमेंट और नॉट? जस्ट राइट डाउन 1 इनटू द चैट so I can understand that you have completely understood the first statement, the first insight, the first action. All right, let's go to the second insight. Moderate response in middle state. Moderate है तो what we can do, उस insight को हम एक्शन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेटर मार्केटिंग हम कर सकते हैं। ऑडियंस है लेकिन ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, या तो प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन या फिर ये हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट इन द साउथ स्टेट, साउथ स्टेट में अच्छा प्रोडक्ट नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो वहां पर हम कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिस्पॉन्स इन मिडिल ईस्ट, तो हम वहां पर मार्केटिंग बेटर कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड द इनसाइट्स इनटू एक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हाउ इज द वर्कशॉप टिल नाउ? How is the workshop till now? Are you enjoying the workshop? Are you able to understand that how data is being leveraged into different industries? Yes or no? Interesting? अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा होगा।
दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी पेस के साथ जाऊं या फिर थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है, या फिर थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत है, या फिर आई एम गोइंग विद द परफेक्ट पेस? ऑलराइट, थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है। चलिए परफेक्ट और थोड़ा सा फास्ट के बीच में कहीं ले लेते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द बाइंग पैटर्न। अगर मुझे बाइंग पैटर्न पता हो, अगर मुझे अपनी ऑडियंस का पैटर्न पता हो कि मेरी ऑडियंस किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करती है, तो मैं उन्हें बेटर सर्विस दे सकता हूं, बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, और वहां से बेटर प्रॉफिट भी अर्न कर सकता हूं। अगर मुझे पता हो कि मेरी ऑडियंस किस तरीके से प्रोडक्ट्स को परचेज करती है। ऑलराइट, तो इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। आई हैव टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। इफ यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्ट राइट डाउन एग्री इनटू द चैट। पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए, कुछ लोग अभी से एग्री कर रहे हैं, पहले रुक जाइए थोड़ा सा, स्टेटमेंट सुनिए। अब मुझे पता है आप मेरी बात से एग्री करते हैं, लेकिन बात तो सुनिए, ठीक है। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया फॉल्स इन द मिडिल क्लास ऐप। व्हाट डू यू थिंक? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया फॉल्स इन द मिडिल क्लास ऐप। अब जब मैं मोस्ट कहता हूं, तो मोस्ट का मतलब क्या है कि 50% से ज्यादा। कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा। डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट? Okay, most of you are like agree with this particular statement. All right, now let's move on to the second statement. The second statement says that most of the middle class people goes into the market to purchase the new product only on the festive season, because there is a better sale, better offers, better bonuses on the festive season. Do you agree with the second statement or not? That's great. अब कभी आपने सोचा है कि Amazon और Flipkart अपनी सबसे बड़ी सेल सिर्फ दिवाली के टाइम क्यों लॉन्च करते हैं? एनी आइडिया अबाउट दैट? एनी आइडिया? एनी आइडिया? चलिए मैं बताता हूं। डिमांड तो होती है, लेकिन जो माइंडसेट होता है कंज्यूमर का, देखिए अगर मैंने माइंडसेट अपना बनाया हुआ है कि सर्दियों में मैं जाने वाला हूं गोवा गोवा या फिर गर्मियों में मैं जाने वाला हूं मनाली, तो ये मेरा माइंडसेट है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने फाइनेंसेस को भी प्लान करूंगा। तो वहां पर उस टाइम पर जब मैं चाहता हूं, जब मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रोडक्ट को परचेज करूं, और जब मैंने अपने फाइनेंसेस उसी अकॉर्डिंग प्लान किए हुए हैं, तो अगर उस टाइम मुझे बेटर ऑफर दे दिया जाए, तो मैं तुरंत उस ऑफर को ले लूंगा। राइट, सो दिस इज द थिंग। माइंडसेट होता है, माइंडसेट के साथ साथ लोगों के फाइनेंसिस प्लान होते हैं, और यहां पर अगेन डिमांड वाली चीज है। अगर जो शॉपकीपर्स हैं पूरे ईयर में एक जो प्रोडक्ट है उसे 1000 की वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, और फेस्टिव टाइम पे अगर 900 की वैल्यू पे वो सेल कर रहे हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी के चलते हुए वो बेटर रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। Yes or no into the chat, guys? Yes or no into the chat? All right, moving on. Moving on. Now let's talk about the retail thing. Now let's talk about the retail thing. Retail में किस तरीके से use किया जाता है? There's a very important concept into the data analytics which is known as descriptive analysis. अलग-अलग तरीके की analysis होती है. Descriptive analysis है, predictive analysis है, prescriptive analysis है. मैं यहाँ पे आपको descriptive analysis बताता हूँ. लिखा हुआ है descriptive sales analysis. Descriptive sales analysis तब हम कहते हैं जब हम sales data के ऊपर कर रहे हैं। और अगर हम किसी और डेटा के ऊपर करते हैं, जैसे फाइनेंस डेटा के ऊपर करते हैं, तो हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। On the basis of the historical data, you are analyzing the historical data and you are trying to figure out that what actually happened. All right, so if you are able to understand the descriptive analysis, just write down DA into the chat. Just write down DA into the chat if you have understood the descriptive analysis concept. All right, great. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से अब देखिए यहां पर एक सिनेरियो के बारे में बात करने वाले हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, आप में से कई लोग इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, और आप डिस्क्रिप्टिव सेल्स एनालिसिस करने के बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो एक कमाल के एनालिस्ट हैं, एक कमाल का शॉप है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें बहुत ही कमाल के एनालिस्ट हैं जिनका नाम है नट्टू काका, ठीक है। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, दे आर लाइक एज द नेम सजेस्ट, दे आर लाइक सेलिंग द डिजिटल प्रोडक्ट्स, दे आर सेलिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स। और वहां पर जो डेटा एनालिस्ट हैं नट्टू काका,
Nattu Kaka have structured the data into a very amazing way. बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेटा को स्ट्रक्चर किया है. स्ट्रक्चर करने के बाद उन्होंने डेटा को एनालाइज भी किया, और जब उन्होंने डेटा को एनालाइज किया, उन्होंने कुछ इंसाइट्स उसमें से निकाले. क्या इंसाइट थे? इंसाइट पहला ये था दैट एवरी पर्टिकुलर ईयर दे आर एबल टू सी 10 to 15% ऑफ ग्रोथ रेट. ठीक है, पहला क्या था कि 10 to 15% का ग्रोथ रेट है. सेकंड इंसाइट ये है कि लास्ट ईयर दे हैव सोल्ड 100 रेफ्रिजरेटर. अब आप मुझे बताइए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आप हेल्प करने वाले हैं नट्टू काका की और खासकर बागा के, बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. ऑलराइट, सो हु इज द ओनर, हु इज द फाउंडर? फाउंडर इज मिस्टर जेठालाल गड़ा. Who is the data analyst? Data analyst is Mr. Nattu Kaka. And who is the inventory head? Inventory head is Mr. Baga. All right. So you are going to be working with Mr. Baga. All right. How you are going to be helping Mr. Baga? आप बताने वाले हैं कि Mr. Baga को कितने फ्रिज रखने चाहिए अपने इन्वेंट्री में. ठीक है, यहां पर आप हेल्प करने वाले हैं. So the scenario is 10 to 15% growth rate every year. और लास्ट ईयर अगर 100 रेफ्रिजरेटर वहां पर सेल किए गए हैं, तो इस पर्टिकुलर ईयर उन्हें अपनी इन्वेंटरी में कितने फ्रिज रखने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? कितने फ्रिज रखने चाहिए? दिस इज योर इनसाइट विच इज गोइंग टू बी हेल्पिंग मिस्टर बागा, एंड ही माइट गेट अ प्रमोशन. $10 to 15% growth rate. So someone is saying 120, someone is saying 150, someone is saying 115, someone is saying 110. So just support your answer with a statement, with a comment. So I'll be able to understand that why you are saying that this particular number is the right answer. Just support your answer with a statement. Tell me something. Last fridge plus 15%. Okay. तो इसलिए आप 115 कह रहे हैं. 40, 50, 10, 15 means 10-15 ग्रोथ रेट. चलिए मैं बहुत ज्यादा इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं. सबसे पहले 100 रेफ्रिजरेटर तो लास्ट ईयर सेल कर दिए गए थे, तो 100 सबसे पहले तो हम रखने वाले हैं. 10 to 15% का ग्रोथ रेट है. ऑप्टिमिस्टिक हम रहते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ रेट लेके चलते हैं 15, तो 115 हो गया. थोड़ा सा एरर रेट लेके भी हम चलेंगे. हो सकता है कि कुछ फ्रिज हमारे काम नहीं किए, तो हम एकदम पिन पॉइंट, एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं लेके चल सकते, इसलिए हम 5% का एरर रेट भी लेके चलते हैं. तो हो गए हमारे 120. 120 के बाद हम थोड़ा सा अदर सोर्सेज भी से भी ट्राई कर सकते हैं कि हाँ 5% से हमारा वहां भी आ सकता है. सो अकॉर्डिंग टू मी 125 इज द राइट आंसर, बट इट कैन बी डिफर पीपल टू पीपल. आप कुछ अलग आंसर दे सकते हैं, आप कुछ अलग रीजंस दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी 125. ऑलराइट, ओके. जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर देते हैं तो उससे क्या होता है? सीमलेस एक्सपीरियंस यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर. If the consumer is coming to your shop and you are able to deliver the product on time at that particular time only, that means you are offering a better experience to the consumer, और उससे consumer का जो retention है that is going to be increasing, right? Okay, consumer mindset we have already talked about that. Capacity planning we have already talked about that into the inventory management की capacity आपको plan करके चलनी है according to the demand. Demand forecasting we have already planned कि 10 to 15% का growth rate है. So this is our demand. इसी तरीके से हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज होने वाली है. ऑलराइट, ओके. नाउ ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव रीच्ड टू द वन essential part. How many of you wants to connect with me over LinkedIn? Because we do offer free learning over LinkedIn, a mentorship over LinkedIn, and of course, yeah, giveaways. There's a very essential thing that I'm talking, that is the giveaways. All right, so how many of you wants to connect with me over LinkedIn? Should I just send you my LinkedIn profile? Yes or no? Do you want my LinkedIn profile's link? All right. So I'm sharing my LinkedIn profile. Just a second. Let me just visit my post so I can share you. All right. So this is. All right. So from this particular link, you can follow me. Okay. All right. Moving on to the next concept. That's great, Shweta. We are already connected. That's great. Now we have reached to the part where we are going to be discussing about the data science. आपने बहुत सारी देखे होंगे, हो सकता है कि आपने ब्लॉग्स पढ़े हो सकता है आपने किसी से सुना हो, लेकिन still you must be having a like kind of fog
आपको जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट इज डेटा साइंस, इफ यू हैव द सेम क्वेश्चन just write down boom into the chat so I can understand that you have the same question. If you have the same question, just write down yes into the chat. Just write down yes into the chat so I can get an idea that you have the same question. All right, that's great. That's great, guys. That's great. So, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली डेटा साइंस मींस. ओके, डेटा साइंस इज द डोमेन ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा. पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्लीज गाइस फोकस, प्लीज फोकस. सो दिस इज द लिंक, इससे आप कर सकते हैं कनेक्ट. नाउ प्लीज फोकस, बहुत ज्यादा फोकस, आपको फोकस होके सुनना पड़ेगा वरना आप बार बार पूछेंगे कि मतलब क्या था. ठीक है, तो फोकस होइए. पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डेटा साइंस इज द डोमेन ऑफ स्टडी दैट डील्स विद वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा. वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा यानी कि बिग डेटा, इतना डेटा जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते. जीबीज में भी होगा, टीबीज में भी होगा, पेटाबाइट्स में भी होगा, बल्कि जेटाबाइट्स में भी होगा. इतना डेटा जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इमेजिन कीजिए कि अमेजोन का पूरे वर्ल्ड में कितना डेटा होगा. इतने बड़े डेटा को भी आप यूज कर सकते हैं इनटू डेटा साइंस. ऑलराइट, so if you have understood the first point, just write down 1 into the chat. This was the first point. If you have understood the first point, just write down 1 into the chat. If you have any query regarding first point, just ask me into the chat. All right, I don't think so there's any query. Okay, now let's move on to the second point. The second point says that using modern tools and techniques, यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स. पहला हमारा क्या पॉइंट था कि हम बहुत बड़ा डेटा यूज कर रहे हैं, वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा, जीबीज, टीबीज, पेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स, बल्कि जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने बड़ी डेटा को हम यूज कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट हमारा कहता है दैट वी आर यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स. मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का क्या मतलब है, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूज करते होंगे एक्सेल. हाउ मेनी ऑफ यू यूजेस एक्सेल? जस्ट लेट मी नो इनटू द चैट, हाउ मेनी ऑफ यू यूजेस एक्सेल? Yes, many of you, right? All right. So if I say that I'm going to give you 5 GB of data into Excel, will you be able to perform the operations using Excel without lagging or without like crashing the software? It is not possible, right? It is not possible. So Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप बड़ी डेटा को एनालाइज कर सकें. So to analyze the big data, to analyze the big amount of data, what we have to do is we have to focus on the modern tools and techniques. Modern tools and techniques like Python, like SQL, like Tableau, like Power BI, like SAP. So these kind of different softwares we can use in order to perform the operations onto the big data. All right. Modern tools and techniques का क्या मतलब है? Modern tools and techniques like Python, like SQL, टैबलो, पावर बीआई, इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे हम यूज कर सकते हैं. इफ द सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, जस्ट राइट डाउन 2 इनटू द चैट. इफ द सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, जस्ट राइट डाउन 2 इनटू द चैट. ऑलराइट, नाउ द वेरी थर्ड थिंग, नाउ द थर्ड थिंग, वी आर एनालाइजिंग द डेटा टू फाइंड unseen patterns, derive meaningful information and make business decision. Unseen pattern हमने क्या find out किए थे when we were talking about कश्मीरी कावा? Unseen pattern हमने ये find out किए कि कौन सा रीजन किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में. उसके बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो इनसाइट्स हमने जनरेट की थी, और बिजनेस डिसीजन कहीं पे हमने सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया, कहीं पर हमने दूसरा प्रोडक्ट यूज किया, और कहीं पर हमने मार्केटिंग को इंप्रूव किया. So this is how we use the data to find the unseen pattern, derive meaningful information and make business decision. If the third point is clear to all, just write down 3 into the chat. If the third point is clear to all, just write down 3 into the chat, guys. All right, that's great. Now let's move on to the very important and the fourth point, that is data science uses complex machine learning algorithms to build predictive models. ओके, थर्ड पॉइंट कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से. अनसीन पैटर्न को हम निकाल रहे हैं. जब हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं उसमें से कुछ पैटर्न्स निकाल रहे हैं हम. जैसे हमने अभी कश्मीरी कावा के बारे में बात की. कश्मीरी कावा में हमने क्या किया था, हमने 1 मंथ का सेल्स रिपोर्ट मंगाया था, और उसमें से अनसीन पैटर्न हमने किस तरीके से निकाले थे कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स अपना दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए.
ठीक है, साउथ के जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मिडिल पार्ट के जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये अनसीन पैटर्न्स हैं। जो हमने इनसाइट्स जनरेट की थी वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन था, पैटर्न्स हमने निकाल लिए, लेकिन उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो हमें समझ में आया उसके बेसिस पे हमने बिजनेस डिसीजन क्या लिए, so that is making the business decision. So now I think that the third point is must be clear to all. If the third point is clear, just write down 3 into the chat. All right, now let's move on to the very important concept, that is the fourth point, that data science uses complex machine learning algorithm टू बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल्स। दो ऐसे टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं जिससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। पहला हमारा टर्म है कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। कॉम्प्लेक्स हमें पता है, जो टिपिकल होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमें इंग्लिश वर्ड है, हमें पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इस वर्ड को समझ के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम की। सो गाइस, कैन यू टेल मी, आई एम हैविंग द ब्लैक कॉफी राइट नाउ, सो कैन यू गाइस टेल मी in 3 easy steps how I can prepare the black coffee. So the black coffee is without milk and without sugar. कई बार ऐसा हुआ है लोगों ने मेरी ब्लैक कॉफी में शुगर डाला है, मिल्क डाला है। आपको मिल्क भी नहीं डालना है, आपको शुगर भी नहीं डालना है। 3 easy steps में प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिपेयर अ ब्लैक कॉफी। Okay, hot water, coffee and lemon. Okay, water, tea, powder, okay, stain, coffee, water and lemon. Okay, so this is what you guys are telling me. You're telling me the procedure to make a tea, right? This is the procedure to make a hot coffee, black coffee. That's right. Okay, so this is the procedure to make the black coffee, yes or no into the chat. This is the procedure to make the black coffee, yes or no into the chat. टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। सो बेसिकली एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू execute a particular task. Okay, algorithm is clear to all. If algorithm is clear to all, just write down A into the chat. If algorithm is clear to all, just write down A for apple. Yes, all right, great. अब मशीन लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। मशीन लर्निंग बहुत ही आसान भाषा में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन मशीन लर्निंग टू अ किड, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। ऑलराइट, you can explain machine learning to older kids in a very simple way by saying how it simulates human learning pattern. ह्यूमन लर्निंग का जो पैटर्न होता है, हम कैसे समझते हैं, हम कैसे चीजों को सीखते हैं, हमारा जो सीखने का तरीका है, उसको जब सिमुलेट किया जाता है, वो मशीन लर्निंग होती है। ऑलराइट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वी लर्न, वी ग्रो and we update ourselves, right, to develop itself by continuously accessing the data. हम ये क्यों कहते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए, आपको एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर मिलने का क्या मतलब है, आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग तरीके के डेटा को इनपुट करेंगे, और जब डेटा को आप इनपुट करेंगे, आप खुद ग्रो करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे। सो दिस इज द वेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू लर्न एंड ग्रो। यस और नो इनटू द चैट, yes or no into the chat, guys. Yes or no into the chat. Are you guys able to understand what I'm saying? So a normal human being, how a normal human being learns things. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसी चीजें सीखता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम डेटा को इनपुट करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम उसी तरीके का अपने अंदर ग्रोथ इनपुट करवाते हैं, राइट? ओके, और कंटिन्यूअसली एक्सेसिंग द डेटा ऑन द डेली बेसिस, वी आर एक्सेसिंग द डेटा। तो इसी पूरे सिनेरियो को जब मशीन्स रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हैं, जब मशीन्स उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जब यहाँ पर सिमुलेट करने की कोशिश करती हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल मशीन लर्निंग। What machine learning is doing? Machine learning is accessing the data. On the basis of the data, machines are trying to figure out the things. Machines are trying to figure out the things, and machines are trying to like खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही और ज्यादा सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, अगर हमें चाय बनानी है, चाय के लिए हमें 2 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो हमारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उसके साथ जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट,
two particular things are very important. One is input and second is process, right? नॉर्मली मशीन्स को अगर हम देख ले, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर ले रहा हूँ, जिससे अगर नेक्स्ट टाइम आप मशीन लर्निंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए. सो नॉर्मली हाउ अ कैलकुलेटर वर्क्स, how a calculator works. In calculator we are inputting some kind of information and we are also telling that what kind of operation we want to perform. ठीक है, ये operations है हमारे, और उसके साथ साथ हम फिर से input दे रहे हैं, and on the basis of that we are getting the output. Yes or no? Yes or no? Are you guys able to understand the working of calculator? If yes, just write down C into the chat. Just write down C for calculator into the chat. All right, great. तो यहां पर क्या है कि बेसिकली कैसे मशीन्स काम करती हैं, वी आर गिविंग द इनपुट, वी आर गिविंग द प्रोसेस, द ऑपरेशंस, एंड ओवर दैट वी आर गेटिंग द आउटपुट. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस बाय विच द मशीन वर्क्स. अगर हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करें, वी आर गिविंग द इनपुट, we are giving the output, and machines are trying to figure out that what could be the best process to reach this particular output using this particular input. So now I think you guys must be like, it must be very clear to you that what is machine learning. If machine learning is clear to you, just write down ML into the chat. Just write down ML into the chat, guys. एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. आप में से कई लोग स्मार्ट वॉच यूज करते होंगे. अगर आपकी स्मार्ट वॉच का डेटा मुझे पास आ जाए, अगर मैं कंटिन्यूअसली आपके स्मार्ट वॉच का डेटा एक्सेस कर पा रहा हूं जिसमें जीपीएस भी है, तो क्या मैं ये बता सकता हूं दैट नेक्स्ट वीक ऑन मंडे एट 10 AM आप कहां होंगे और क्या कर रहे होंगे? क्या मैं ये बता सकता हूं? यस, नो, मे बी. अगर आपकी स्मार्ट वॉच का डेटा मेरे पास आ जाए अलॉन्ग विद द जीपीएस लोकेशन, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि नेक्स्ट वीक मंडे को सुबह 10 बजे आप कहां होंगे और क्या कर रहे होंगे? डेली लाइफ में हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट? हम खाना खाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम फ्रेशन अप होते हैं, हम कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, एक नॉर्मल हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. आपको दिखाई ना दे, लेकिन अगर डेटा में उसको इनपुट आप करेंगे, एक बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक बहुत ही नॉर्मल पाथ, एक बहुत ही नॉर्मल आपके अंदर जो पैटर्न है वो फाइंड आउट किया जा सकता है. तो अगर मेरे पास आपके स्मार्ट वॉच का डेटा आ गया तो आपको मैं बहुत आसानी से किडनैप कर सकता हूं. ऑलराइट, क्लियर टू ऑल? यस और नो? यस और नो? ओके, ऑलराइट. बिल्कुल उसमें ऐसा हो सकता है. देखिए, बिल्कुल सही बात है, हम एज्यूम कर सकते हैं, हम एक रैंडम गैस दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी हम 100% कभी भी रीच आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन इज अनप्लान्ड. ऑलराइट, now let's move on, guys. What is the difference between data science and data analytics? What is the difference between a data scientist and a data analyst? You must be you must be having this query, right? How many of you have the same query? How many of you have the same query? Just let me know into the chat. Many of you have the same query, right? Someone is saying that we can also plan the crimes, which is a very good thing of data science. So see, you have a knife, either you are cutting the fruit or someone's neck, that depends on you. All right, okay. Okay, so many of you must be having the same query, that what is the difference between data science and data analytics, and how the working of a data scientist and a data analyst differs from each other. All right, so this is what we are going to discuss now. First of all, you have to clear this particular thing, that data science is a domain, data analytics is a domain, data analysis is a domain, data scientist is a job profile, data analyst is a job profile, business analyst is a job profile. तो जब आप data science सुनते हैं, तो आप अगर कहते हैं कि डेटा साइंस कैसे बने, तो आप डेटा साइंस नहीं बन सकते, क्योंकि डेटा साइंस एक डोमेन है. आप कह सकते हैं डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है. ओके, तो मुझे लगता है कि डोमेन और जॉब प्रोफाइल में आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा. अब डोमेन्स में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, दैट वी हैव अ डोमेन व्हिच इज नोन एज डेटा साइंस एंड वी हैव अ डोमेन व्हिच इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ठीक है, so basically we have a very big domain which is known as data science, and data analytics is the subdomain of data science. Data science बड़ा डोमेन, डेटा एनालिटिक्स उसके अंदर एक छोटा डोमेन. बहुत सारे अलग अलग तरीके के डोमेन होते हैं, डेटा साइंस के अंदर सारे डोमेन्स आते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चैट. सो डेटा साइंस इज द superset, okay, and data analytics is the subset. All right, clear to all?
So whatever task that is being performed into data analytics, it is automatically into data science. Clear है सबको? बिल्कुल clear है? कोई confusion है till now? No clear? Okay, great. अब हम यहाँ पर जो मेन चीज है दैट इज a difference between the working of a data scientist and the difference between a working of a data analyst, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं. Alright? तो यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा. Okay. डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स यूटिलाइज डेटा इन डिफरेंट वेज. दोनों अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से डेटा को यूज करते हैं. डेटा साइंटिस्ट, जब आप वर्ड सुनते हैं, ये डेटा साइंटिस्ट जब आप सुनते हैं, साइंटिस्ट जब आप सुनते हैं, आपके माइंड के अंदर क्या आता है? आपके माइंड के अंदर आता है न्यू थिंग्स, इनोवेशन, राइट, वर्किंग ऑन द कोर थिंग्स. यस और नो? इनोवेशन आता है कि नहीं आता है आपके दिमाग में? यस और नो? तो जब एक रिसर्च, राइट, तो जब आप रिसर्च करते हैं, नई चीजों का इनोवेशन करते हैं, आपको बहुत ज्यादा कोर चीजों पर काम करना पड़ता है, राइट. सो डेटा साइंटिस्ट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, स्टैट्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स. बहुत ज्यादा कोर मैथ, बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैथ यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कोर स्टैट्स और हाई लेवल का स्टैट्स यूज करते हैं, मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे वो क्लीन कर सके डेटा को, प्रोसेस कर सके डेटा को और उसमें से कुछ इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके. दे डिजाइन एडवांस डेटा मॉडलिंग प्रोसेस. जिस तरीके से हम कह रहे थे कि साइंटिस्ट क्या होते हैं, हु आर लाइक डूइंग द इनोवेशन, सो दे आर डिजाइनिंग एडवांस डेटा मॉडलिंग प्रोसेसेस यूजिंग प्रोटोटाइप्स, machine learning algorithms, predictive models and custom analysis. ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रोटोटाइप्स को यूज किया जा रहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज किया जा रहा है, प्रिडिक्टिव मॉडल्स को यूज किया जा रहा है और कस्टम एनालिसिस किया जा रहा है. थोड़ा सा आप फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, फिर से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा. देखिए, डेटा साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कोर रोल है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रोल है. डेटा साइंटिस्ट इज लाइक अ शक्तिमान हु नोज एवरीथिंग, जिन्हें विजुअलाइजेशन भी आता है, मशीन लर्निंग भी आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग इनकी पकड़ होती है मैथ्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर, और अच्छे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ये कोशिश करते हैं जिससे इनोवेशन कर सके, कस्टम एनालिसिस कर सके. ऑलराइट, मैथ्स यूज करते हैं, स्टैट्स यूज करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं जिससे क्लीन करते हैं डेटा को, प्रोसेस करते हैं डेटा को और इनसाइट्स उसमें से गैदर करते हैं. So data scientist is clear to all, just write down D as into the chat. If data scientist is clear to all, just write down D as into the chat. All right, great. Now let's move on to data analytics. You will be amazed to know कि currently जो scenario है उसके अंदर data analytics की जो hiring है that is much more than data scientist. ऐसा क्यों है? क्योंकि data scientist में जब आप machine learning algorithm के ऊपर काम करते हैं, algorithm में आपको सही डेटा, अच्छी क्वालिटी का डेटा और टन्स ऑफ डेटा चाहिए जो कि ज्यादातर कंपनीज के पास नहीं है. लेकिन आपको अपनी सेल्स को एनालाइज करवाना है, आपको हर पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करवाना है. दैट इज व्हाई द डिमांड ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज बेटर, इज मोर देन डेटा साइंटिस्ट. ओके, क्लियर टू ऑल? ऑलराइट, ठीक है. तो यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है कि डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है. डेटा analyst examines data sets to identify relevant trends and draw conclusions. ये हम already कर चुके हैं. Data analytics collects large volume of data, organize it, analyze it to identify relevant patterns. Large volume of data को organize कर रहे हैं, analyze कर रहे हैं जिससे relevant patterns को find out कर सकें. After the analysis part is done, they strive to present their findings through the visualizations using charts, graphs, etc. All right. Okay. Moving on. Thus, data analyst transform the complex insights into business savvy language that both technical and non-technical members of an organization can understand. अब यहां पर क्या हो रहा है? डेटा एनालिस्ट क्या कर रहा है? डेटा एनालिस्ट एक डेटा को रैंगल कर रहा है, उसके ऊपर कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है जिससे कुछ इनसाइट्स उसमें से निकाले जा सकें. जब इनसाइट्स आ जाते हैं तो उन्हें कम्युनिकेट भी करना है, डेटा एनालिस्ट को कम्युनिकेट भी करना है और हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल ऑफ मेंबर्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ उन्हें कम्युनिकेट करना है. अब एक मार्केटिंग के बंदे को अगर आप कोड दिखाएंगे उन्हें समझ में ही नहीं आएगा, तो वहां पर क्या जरूरी है कि वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप उन्हें विजुअलाइजेशंस दिखाएंगे. तो विजुअलाइजेशन कुछ इस तरीके से आप दिखाते हैं. ऑलराइट, सो द वर्किंग ऑफ डेटा एनालिसिस इज क्लियर टू ऑल, यस और नो इनटू द चैट. The working of data analytics is clear to all. Just write DA into the chat. Just write down DA into the chat. All right, moving on, guys. So these are the different tools that you can use for data analytics. Excel is there,
Excel is still a powerful tool when you are using small amount of data. We have Python, we have Pandas, we have NumPy, we have Seaborn, we have Matplotlib, we have Tableau. ऑलराइट, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ डेटा एनालिटिक्स का. डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं जिससे इनसाइट्स गैदर कर सकें, और उन इनसाइट्स को यूज करते हुए बिजनेस डिसीजन आप ले रहे हैं. ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन. वी हैव रीच्ड टू द पार्ट डेटा एनालिटिक्स में एक होता है पार्ट जिसे हम कहते हैं बीआई, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस इंटेलिजेंस का जो सबसे अच्छा टूल है दैट इज टैब्लो. आप पावर बीआई भी यूज कर सकते हैं, बट पावर बीआई डजंट वर्क ओवर द मैक डिवाइसेस, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग टैब्लो. यू मस्ट बी हैविंग द क्वेश्चन दैट व्हाट इज बेटर, टैब्लो और पावर बीआई. So and which one you should use? Okay, so this is the same question. If you'll ask कि मैंने टाटा की जो कार है उसको ड्राइव करना सीख लिया है, अब मैं महिंद्रा की कार क्या फिर से सीखूं? तो अगर आपको टाटा की कार जो है वो ड्राइव करना आता है, तो महिंद्रा की कार अगर आप लेते हैं फिर से आपको ड्राइविंग सीखना होगा. यस और नो? यस और नो? नो, राइट. हाँ, गियर्स वगैरह की थोड़ा सा वर्किंग आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपको फिर से ड्राइविंग नहीं सीखनी पड़ेगी. सो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर है. टैब्लो इज प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स एंड पावर बीआई इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो थोड़े बहुत फंक्शनैलिटी चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस फिर से समझना हो, क्योंकि दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, दोनों विजुअलाइजेशन टूल है, और दोनों से डैशबोर्ड क्रिएट किए जाते हैं. क्लियर टू ऑल? यस और नो इनटू द चार्ट? All right. So Tableau के अंदर 3-step process होता है. First of all, we connect with the data, we analyze the data, and then we share the analysis that we have done using the data. Now we have reached to the part where we are going to be getting the data from the very amazing platform that is Kaggle. All right. So I'm sharing my screen again. Just a second. So are you guys able to see my screen? Yes or no into the chat? All right. Okay, I have just received 29 requests, and we have more than 800 people into the webinar right now. So many of you haven't sent me the request yet, right? So I'm sharing my profile again, so you can send me the request, because I'm super active onto the LinkedIn. I'm super active onto the LinkedIn, and you'll be able to like get a lot of resources from my LinkedIn profile. All right. So we were talking about Kaggle. That how we can use Kaggle to get the data. Kaggle is an amazing platform. Kaggle जो है वो Google का ही एक प्रोडक्ट है. Google ने एक्वायर किया है Kaggle को, और यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से आप LinkedIn पर प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट होते हैं, उसी तरीके से Kaggle के ऊपर आप डेटा रिलेटेड पीपल से कनेक्ट होते हैं. many of the persons who are using Kaggle are data scientists, बहुत सारे data analyst हैं, बहुत सारे data engineer हैं. इस तरीके के लोग यहाँ पर हैं, और जिस तरीके से हम न्यूज़ फीड देखते हैं LinkedIn के ऊपर, उसी तरीके से Kaggle के ऊपर हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर पेड कंपटीशन होस्ट होते हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल हेज कंपटीशन और NFL से है ये, और इसकी जो प्राइज मनी है दैट इज $100,000. Again $100,000, $60,000, $55,000, $50,000, $50,000, $30,000. तो यहाँ पर आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहाँ से आप डेटा सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं. डेटा सेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फूड डेटा, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास 2700 डेटा सेट्स आ चुके हैं. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लेट्स से क्रिकेट डेटा, तो क्रिकेट के मेरे पास 591 डेटा सेट्स आ चुके हैं. अगर मैं सर्च करता हूँ फाइनेंस डेटा, तो मेरे पास यहाँ पर 6000 से ज्यादा फाइनेंशियल डेटा सेट्स आ चुके हैं. तो जैसा भी डेटा सेट्स आप सर्च करने की कोशिश करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. आप कोड कर सकते हैं Kaggle के ही ऊपर. सो दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म on which you can like code and do other things also. I'm a data set expert over Kaggle, and here I've created a data set from which you are going to be downloading the data, which we are going to be using for creating the real world data product. All right. So visit this particular link and create a LinkedIn profile using your Gmail ID, और यहाँ से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं. Clear to all? Yes or no into the chat? Is that clear to all? Because I'm not going to be dropping the link again. Okay, it must be clear to all. This is the link. आपको इस लिंक को विजिट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है यूजिंग योर जीमेल आईडी. यहाँ पर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन मिला हुआ है 5 MB, इसको आप डाउनलोड कीजिए. आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड होगी. उस जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट कीजिए. उसमें 2 फाइल्स होंगी. एक फाइल है आपकी रॉ फाइल, और एक फाइल है आपकी टेस्ट फाइल. आपको रॉ फाइल जो एक्सेल फाइल है
उसको ओपन करना है. क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? ऑलराइट. Now let's understand that what is the procedure, what we are going to be creating and how we are going to be creating. So what we are doing here is that, okay, so now we have reached to the part where we are going to be creating. We have reached to the second phase of the workshop in which we are going to be